Good evening, students. Good evening, ma'am. Okay, children. Last time आपण काय सुरू केलेलं? कुठला टॉपिक कंप्लीट केलेला आपण? कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम? Anybody? Can you hear me, children? Yes, no, no, yes. Yes. Completed 11 lesson. Vedant, have we completed chapter number 11? ओके हमने लास्ट टाइम मिरर फॉर्मूला देखा था, उसके बाद हमने उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला हमने मैग्निफिकेशन के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, राइट? ऑलराइट, ओके, लेट अस डू क्विक रिवीजन, फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं. ऑलराइट, सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क, 1 minute, let me see how many students are there in the class. Okay, I'll come to Vinit. विनित, मुझे मिरर फॉर्मूला बताइए. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. विनित, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? यस विनित. What is mirror formula? Vedant, what is mirror formula? Nobody knows mirror formula. Yes, excellent. Ayush, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. इसमें u का क्या पोजीशन है और v का क्या पोजीशन है और f का क्या पोजीशन है, ये तीनों भी अल्फाबेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये तीनों भी अल्फाबेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यस, गो हेड. वेरी गुड. U represents distance of what? Distance of what? Okay. V represents distance of image. U represents distance of, very good, object. Excellent. And what about F? What about F? Focal length. Very good. Okay. So 1 upon V, that is in 1 upon distance of image plus 1 upon distance of object will be equal to focal length. इसे हम कहते हैं mirror formula. All right. Give me, now I'm coming back to Vinit. Vinit, I want answer. Uses of concave mirrors, कोई भी एक use बता दीजिए concave mirror का, Vinit. And Vaishnavi will give me any one use of convex mirror. Vinit, one use of concave mirror, and Vaishnavi, you are going to write one use of convex mirror. Quick, quick. Am I audible to everybody? Clear आ रही है ना मेरी आवाज? Yes. Okay, great. Okay. Vinit and Vaishnavi, are you there in the class? I'll wait for your answers. Okay. In the meantime, I'll go ahead with another question. All right.
अभी tell me any one rule, okay, any one rule of drawing ray diagram. 3 रूल थे ना, ड्राइंग रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, है ना? तो उसमें आप मुझे बिफोर गोइंग टू रे डायग्राम, बिफोर नो 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 स्पीकिंग, यू विल राइट इन द चैट बॉक्स. बिफोर गोइंग टू रे डायग्राम, विल गो टू सम डेफिनेशन. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, you may raise your hand so I can allow you to write the answer. ऐसे randomly मत लिखिए. You may raise your hand. वहाँ पे raise hand का option है ना? Yes, anybody? Okay. Definition of center of curvature, या what do you mean by center of curvature? Okay, yes Ayush, you can type. Go ahead. Center of curvature. Kadambari, coming to you. 1 minute. Ayush, you can type your answer. Center of curvature. Shortcut में लिखो, no problem. What do you understand? ठीक है. In the meantime, Ayush types, what is principal axis? That's an easy question. What is principal axis? Vedant, you can type. Yes, Kadambari, go ahead. Go ahead. Ayush, the center of sphere of which the mirror is part is called as center of curvature. The center of sphere, okay, of which a mirror is part is called as center of curvature. Okay, okay. So can we say it is a center point of the mirror, Ayush? Am I correct? कोई भी मिरर का वो सेंटर पॉइंट? यस. ओके. कादम्बरी, वेटिंग फॉर यू. Principal axis. What is principal axis? Vedant, you can tell me about principal focal length. बता दो. What do you mean by focal length? Principal axis. Kadambari. And still I'm waiting for Vinith and Vaishnavi to reply me. The straight line passing through the pole and the center of curvature of the mirror is called as principal axis. Pole and center of curvature. Excellent. Very good. Very good, Kadambari. विनीत, आपने मेरा सवाल सुना है, आपका रिप्लाई में वेट कर रही हूँ. Very good. Vedant, I'm waiting for you to reply me on focal length. Yes. Straight line passing through the pole and the center of curvature of the mirror. But Vinith, आपका ये सवाल नहीं था. Though you are right, you are correct absolutely. But आपका सवाल कुछ और था. No, you cannot unmute yourself, बच्चा. Write down in short form. Principal focus. What do you understand? Exact words नहीं रहेंगे तो भी चलेगा. Use important key points जो हमने डिस्कस किए थे. Okay. My question to you was any one use of concave mirror. And my question to Vaishnavi was any one use of convex mirror. Vinith, concave mirror. कोई भी एक यूज बता दो मुझे उसका. The focal length is the distance between the lens and its focal point. The focal length is a distance between lens and its focal point. Okay, very good.
So can we say it is a distance between principal focus और पोल? वेदांत, क्या हम उसे पोल बोल सकते हैं जो आप बता रहे हो? क्योंकि लेंस पे बहुत सारी जगह है. सो कैन वी से पोल? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? Very good, Vinit. It is used in supermarkets and shop. Please be attentive. Next time I'll not repeat my question. Vaishnavi, you're still not replying. Vaishnavi, आप हो या नहीं हो? Say yes or no at least. Yes, focal point. I'm talking about. Okay, चलो ठीक है. So with this, I think we are done. So I hope किसी को कोई doubt है previous session में, we'll wind it up here. We can start with new chapter. No doubt. Okay. Anybody else? No doubt. ठीक है. All right. ठीक है. We'll go to a new topic today. Now, दिवाली में या कोई भी फंक्शन होता है, त्योहार होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, ठीक है? ओके ओके. कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो हम सबसे पहले सेलिब्रेशन कहाँ से शुरू करते हैं, क्या करते हैं? अपार्ट फ्रॉम ऑल द ट्रेडिशनल थिंग, स्वीट्स बनाना, पूजा रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बाद हम एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? उसके बाद हम एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? एनी, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ दिवाली. वी प्ले डीजे. ऑल राइट, वी प्ले डीजे, एब्सोल्युटली. उसके अलावा क्या करते हैं हम? जैसे कि कोई पूजा हो गई शाम के टाइम पे, या हम फ्रेंड्स के साथ मिलके. अपार्ट फ्रॉम डीजे, एक्सेलेंट. फायरवर्क्स, एक्सेलेंट. क्रैकर्स, ओके. तो डीजे, फायरवर्क्स या क्रैकर्स बोल लीजिए. सो डू यू फील अ साउंड? करेक्ट. क्या हम बोल सकते हैं उसमें से आवाज आती है? आवाज के साथ साथ क्या क्या होता है? लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ फायरवर्क्स. साउंड आता है उसमें से, लाइट आती है. वेरी गुड. लाइट के अलावा क्या आती है? और क्या होता है? साउंड आती है, लाइट आती है, वाइब्रेशन. एक्सेलेंट, वेरी गुड विनीत. वाइब्रेशन. तो कभी कभी अगर एटम बॉम्ब रहा, ओके, या फिर कोई बड़ा सा पटाखा रहा, केमिकल गैस भी होती है. वेरी गुड. तो ये सारी चीजें जो होती है, बड़ा पटाखा एंड बहुत लंबा वाला जो क्या बोलते हैं उसको, 1000 की मार या जो भी बोलते हैं उसको, तो वो जब भी बर्स्ट होते हैं तो क्या हमको ऐसे हार्ट बीट्स फास्ट होते हैं? कभी नोटिस किया आपने? अगर आप नियर बाय से जा रहे हो ऑल ऑफ द सडन. यस, ओके. सो कैन वी से इट इज द साउंड, और उसके वाइब्रेशंस हमें फील होते हैं, कान पे हमारी आवाज पड़ती है और उसके वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में फील होते हैं. कैन वी से लाइक दैट? यस, ओके. ऑल राइट, कमिंग बैक टू डीजे. डीजे का आवाज, नबी डीजे हम सब लगाते हैं. कभी कभी आपने सुना है ये जो डीजे का आवाज है, इट इज सेंसिटिव टू ओल्ड पीपल एंड एनिमल्स अराउंड अस. वो ये आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. कैन यू गिव मी अ रीजन व्हाई? यस, कोई रीजन बता सकते हैं क्यों ऐसा होता है? ओके, I'll tell. Anybody? Okay, coming back here. So सबसे पहला, old people are sensitive because उनकी एज के हिसाब से उनकी ईयर्स और उनकी जो बॉडी पार्ट्स है, they become sensitive towards बहुत ही ज़्यादा heavy vibrations के. Yes, and animals can feel this sound 6 times greater than human beings. उनका हियरिंग कैपेसिटी इतना सेंसिटिव है. वी विल लर्न अबाउट दैट. मैं आपको वेव्स का चार्ट भी बताऊंगी जहाँ पे हम अलग अलग साउंड के फ्रीक्वेंसी का हम देखेंगे कि किसको कितनी फ्रीक्वेंसी में आवाज सुनाई देता है. ह्यूमन ईयर्स, एनिमल ईयर्स एंड सम ऑफ द अदर मैमल्स ऑल्सो. किस तरह से, आई विल शो यू दैट चार्ट, डोंट वरी. पर पहले हम ये जान लेते हैं दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स साउंड. तो कभी भी थोड़ी भी आवाज आती है दूर पे जो हमें सुनाई नहीं देती है पर उनको सुनाई देती है, दे स्टार्ट गेटिंग स्केयर्ड.
ओके, उनको वो वाइब्रेशंस उनकी बॉडी में बढ़ने लगते हैं। ऑलराइट, सो एवरीथिंग अबाउट दिस, ये वाइब्रेशंस कैसे ट्रांसफर होती है, ये जो एनर्जीज अभी हमने बात की है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जीज, ओके, ये सारी इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन आवर न्यू चैप्टर, दैट इज शेयरिंग माय स्क्रीन। एनी गेसेस? Any guesses? Study of sound. Very good. So we are beginning with a new chapter, study of sound. All right. अभी यहाँ पे how does the velocity of sound depend on its frequency? जैसे अभी हमने बात की साउंड और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। ओके, how is the direction of oscillation of particles of medium related to the direction of propagation of sound waves? इसके बारे में भी हम जानेंगे। Yes, I'll zoom my screen. I forgot that. Better, कादम्बरी? Whether better है ये? Okay. इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, साउंड वेव्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है ऑफ कोर्स। ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी, ऑडिबल साउंड, इंफ्रा साउंड एंड अल्ट्रा साउंड, ये जो कैटेगराइजेशन है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। साउंड इज sound is a form of energy which creates the sensation of hearing into our ears. जैसे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारी आंखों को सेंसेशन देती है चीजों को देखने के लिए, लाइकवाइज साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates sensation of hearing in our ears. This energy is in the form of waves. Okay, sound को किसी ने छुआ है अभी तक? Have we seen a sound? कोई फॉर्म है साउंड का? नो, सो दैट इज व्हाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, अब मीडियम इज नेसेसरी साउंड के लिए, साउंड का प्रोपगेशन होने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम क्या हो सकता है? हमने लास्ट चैप्टर में मीडियम पढ़े थे अलग अलग। कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं? एयर, वेरी गुड विनीत। और वाटर, एक्सेलेंट। और यस कादम्बरी, वाटर। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? बाकी सब भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं विनीत, कादम्बरी और आयुषी आंसर दे। एयर, वाटर और एक मीडियम बाकी है। कैन वी से सॉलिड स्टेट? यस, सो वी हैव अ मीडियम ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। सो इसमें से साउंड पास होता है या साउंड ट्रैवल होता है। So we need a medium which is necessary for the propagation of sound waves. Propagation का मतलब क्या है? Propagation का मतलब क्या है? Anybody? 9th standard? Propagation का मतलब क्या है? Propagation से अर्थ क्या है? Any wrong guesses is fine, huh? It's all right. Even sometimes we teachers also make mistake. Absolutely fine. Don't worry. जो भी आपको समझ में आता है प्रोपगेशन का वर्ड मीनिंग वो बता दीजिए. We will clear your doubts here. Exactly, transfer of sound from one place to another. Very good. Okay? जब भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे साउंड ट्रांसफर होता है या ट्रैवल होता है, we call it as a propagation in science. So propagation of sound. Sound waves give rise to a chain of compression. अभी आपको transferring, very good विनीत, yes, transferring of sound. अभी ये जो sound waves होते हैं ना, they give rise to a number of chain. Okay? अभी इस chain में क्या होगा? दो चीजें हो सकती है chain में। कभी आपने, okay, I'll give you the best example. कभी आपने कार्डियोग्राफ देखा है? कार्डियोग्राफ देखा है आपने? हार्ट बीट देखा है आपने? और हार्ट बीट को फील किया है आपने? यस, ओके, तो उसमें क्या मैं बोल सकती हूँ कि उसमें अगर आपने ये नोटिस किया होगा, अगर आपने कोई कार्डियोग्राफ देखा होगा आपकी फैमिली में किसी का भी, सो हार्ट बीट्स इस तरह से होते हैं। अग्रीड विथ मी? ऐसे छोटा मोटा, राइट?
स्ट्रेट लाइन मतलब पर्सन इज डेड, नो मोर वाइब्रेशंस। ये जो होते हैं ऊपर नीचे, ये वेव्स होते हैं। ओके, अगेन व्हेन योर हार्ट इज बीटिंग, उसमें भी हमारे और ये होते हैं, क्या होते हैं, चेन रिएक्शंस होते हैं, सॉरी चेन एक्शन होती है, नॉट रिएक्शन, चेन ऑफ एक्शंस होती है। कैसे होती है, ऊपर नीचे इस तरह से होती है। ओके, लाइकवाइज अगर आप टिपिकल साउंड वेव को देखने जाओगे तो उसमें कैसा होता है, उसमें भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन का मतलब है जहां पे हायर डेंसिटी, एंड रेयर फ्रैक्शन का मतलब है द प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी। अभी मेरे बात करने के टाइम पे कैन यू हियर मी, समटाइम्स आई एम एट अ हायर पिच and sometimes I come down to the lower pitch, right? So this when I go to the higher pitch, वो आपको जो फील होता है वो है compression because of higher density, and rare fraction मतलब जब भी मैं स्लो हो जाती हूँ तो आपके waves जो है वो स्लो हो जाते हैं। ओके, सो ये सब कुछ होता है with the help of medium only. The particles of medium oscillate about their central or mean positions in a direction parallel to the propagation of wave. क्या होता है यहाँ पे ये जो कंप्रेशन और ये जो रेयर फ्रैक्शन है, इनमें क्या होता है, ये जो मीडियम के अंदर ऑसिलेट होते हैं। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, एनीबडी, एनी आइडिया अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन? आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है? एनीथिंग यू फील, जो भी आपको समझा सो फार? नो, ओके ठीक है। ऑसिलेशन का मतलब है मूवमेंट। ओके, मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ टू एंड फ्रो मूवमेंट, हम उसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट। ओके, टू एंड फ्रो मूवमेंट का मतलब है ऑसिलेशन। यस, बैक एंड फ्रो या टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं। आगे पीछे जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद है, ये आपका एक पेंडुलम का पता है एक्टिविटी था। अगर आप पेंडुलम को मूवमेंट देंगे, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, पोजीशन ओ, ठीक है। अगर आप इसको मूवमेंट देंगे, ये आगे जाएगा, ये पोजीशन नंबर 1 है, फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा और वापस ये पीछे जाएगा, ये पोजीशन नंबर इसकी 2 है। ओके, सो ऑसिलेशन का मतलब है इसकी ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट होती है और वापस ओरिजिनल पोजीशन से पीछे जाती है, तो ये पूरा और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, वन मूवमेंट, वन ऑसिलेशन, इसे क्या बोलते हैं। गॉट इट एवरीबडी? सो ऑसिलेशन इज नथिंग बट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट। ओके, वेरी गुड विनीत, एक्सेलेंट। ओके, जो आगे पीछे वाली मूवमेंट होती है अलोंग विद इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। ठीक है, ऑलराइट, कमिंग बैक हियर, 1 मिनट। ओके, देयर वी गो। इसके बाद क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, साउंड में भी सेम होता है। The particles of the medium oscillate about their central and mean positions in a direction parallel to the propagation of sound wave. यानी कि जहां से ये साउंड ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे ही इसका आगे पीछे वाला मूवमेंट होता है। कैन यू सी हियर, वाइब्रेशन होता है आगे पीछे वाला। ओके, ये आगे हो रहा है, ये पीछे हो रहा है, इधर ही हो रहा है। सो ये मूवमेंट इसके साथ पैरेलल होती है। ओके, जहां से साउंड जनरेट हो रहा है या आ रहा है। नाउ सच वेव्स, ओके, सच वेव्स जो ऑसिलेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव्स। व्हाट वी कॉल इट एज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स या लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव्स। जो वेव्स प्रोपगेटेड साउंड के साथ पैरेलल होती है और टू एंड फ्रो मूवमेंट बताती है या ऑसिलेशंस बताती है, इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव्स। एम आई क्लियर विद दिस? सबको समझा लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव्स क्या होते हैं? यस, नो, यस, ओके। ऑन द अदर हैंड, अभी लॉन्जिट्यूडनल का ऑपोजिट तो ऑब्वियसली होगा। ऑन द अदर हैंड, द वेव्स क्रिएटेड बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन इन अ स्टिल वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर विल ऑसिलेट अप एंड डाउन। लॉन्जिट्यूडनल में क्या होगा,
the particles will oscillate about their central और mean positions. पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे particles जो है वो oscillate होते हैं up and down. These oscillations are perpendicular to the direction of propagation. यहाँ पे क्या होंगे, ये oscillation perpendicular होंगे to the direction of propagation. Such waves are called as transverse waves. Okay, एक तो है longitudinal waves, एक है transverse waves. I'll just share my screen again. यहाँ पे share कर लेती हूँ मैं. Is my whiteboard shared on your end? Visible, everybody? Yes, okay. Longitudinal waves का मतलब क्या होता है? We will first talk about longitudinal waves. Okay. So longitudinal waves वो होते हैं one minute. Longitudinal waves, these are those waves जो आपके originated sound के साथ क्या होंगे, वो parallel होंगे. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपका साउंड जनरेट हो रहा है. लेट अस टेक दिस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेट्स से आपका साउंड जनरेट ऐसे हो रहा है. ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में ये आपका साउंड का डायरेक्शन है. ठीक है, अब इसमें से जो ऑसिलेशंस आते हैं, ओके, इसमें से जो ऑसिलेशंस आएंगे, ऑसिलेशंस यहाँ से जो आएंगे, दे विल बी, क्या होंगे ऑसिलेशंस, वो ये सेट ऑफ ऑसिलेशंस है. ओके, दिस ऑसिलेशंस विल बी पैरेलल टू लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. एम आई मेकिंग सेंस? आपको समझ में आ रहा है? अगर आप लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को ध्यान से देख रहे हो, ये और ये ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट? ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दे विल बी पैरेलल टू द सोर्स ऑफ साउंड. ओके, इसका मतलब क्या है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट रहेगा. ओके, सो इसमें पैरेलल रहेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स टू ऑसिलेशंस जो टू एंड फ्रो मूवमेंट क्रिएट करेंगे. इसीलिए हम इसको लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं. ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट की ओर. दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ट्रांसवर्स वेव्स, राइट? व्हाट इज इट? ट्रांसवर्स वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में इसका जनरेशन जो साउंड का होता है वो यहाँ पे होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने स्टोन ड्रॉप किया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने स्टोन ड्रॉप किया है. 1 मिनट. लेट अस से मैंने ये पोजीशन से स्टोन ड्रॉप किया है. ठीक है, यहाँ से मैंने पानी के अंदर स्टोन ड्रॉप करने के बाद मेरे पानी के अंदर जो है वो वाइब्रेशंस आएंगे. ओके, लेट अस से ये पानी का लेवल है, यहाँ पे ऑसिलेशंस फॉर्म होंगे. स्टोन यहाँ से ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे ऑसिलेशंस फॉर्म होंगे. सो इस केस में क्या होता है, इस केस में ऑसिलेशंस जो होते हैं दे आर, यहाँ पे जो ऑसिलेशंस होते हैं, डोंट यू थिंक दिस ऑसिलेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? यस, इसमें जो वेव्स फॉर्म होंगे चिल्ड्रन वो परपेंडिकुलर होंगे, लाइक दिस 90 डिग्री. ओके, डू यू अग्री विथ मी? 90 डिग्री. सो हेंस यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट रहेगी, अप एंड डाउन. इसलिए जब भी आप रिपल देखते हो पानी का, पता है ड्रॉप्स गिरते हैं तो रिपल बनता है. दिस इज अप एंड डाउन मूवमेंट. ओके, सो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखना, दिस विल बी परपेंडिकुलर.
perpendicular, that is up and down, up and down. Okay, so this up and down is your ट्रांसवर्स वेव्स. इज दिस क्लियर विद एवरीबडी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आपके लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में पैरेलल मूवमेंट रहेगा, टू एंड फ्रो रहेगा. ट्रांसवर्स वेव्स में ऑसिलेशंस होंगे, वो परपेंडिकुलर रहेंगे 90 डिग्री पे, अप एंड डाउन. ओके, ये सेम इसमें जाएंगे, सेम प्लेन में जाएंगे या सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे. ठीक है, चलो वेरी गुड, विल कम बैक हियर. इसका ये इतना क्लियर है. नाउ वी विल सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, लेट अस कम बैक हियर. ऑलराइट, अ साउंड वेव कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. हम साउंड वेव का एक ग्राफ भी बना सकते हैं. जैसे सबसे बेस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था. कैन एनीबडी रिकलेक्ट साउंड वेव्स का ग्राफ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था. यस, 1 minute, children. 1 minute. Just a minute, please. Please wait. ओके, कमिंग बैक हियर. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले दिया था. एनीबडी? एनीबडी? आई एम नॉट गेटिंग मैसेजेस. शायद मैंने स्क्रीन शेयर करी है इसके लिए. वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. हाँ, मैंने ये कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ऑफ वेव्स. आपके जो साउंड वेव्स है जो ग्राफ बनाते हैं, कौन सा एग्जाम्पल था वो? हार्ट. वेरी गुड, दैट इज कार्डियोग्राफ. ओके, हार्ट बीट की मूवमेंट रिकॉर्ड करने वाला वो कार्डियोग्राफ. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. At any moment during propagation of sound wave, we would find alternate bands of compression and rarefaction. कोई भी साउंड रहने दो, आपको उसमें कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन तो मिलेंगे ही. ओके, इसमें क्या होता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है, कौन सी मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस से ट्रैवल कर रहा है. सो अकॉर्डिंगली ये कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शंस बनते हैं. इट कैन बी बैंड ऑफ ग्रेटर एंड लेसर डेंसिटीज. In figure 21.1, this is showing a change in density, while in figure B shows a change in pressure. ये वाला जो प्रेशर शो ए वाला फिगर है, इसमें क्या होता है, डेंसिटी बता रहा है. कैन यू सी चेंज इन डेंसिटी? ये कंप्रेशन है, दिस इज कंप्रेशन, दीज आर रेयर फ्रैक्शंस. ओके, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी. ओके, वैसे ही इसी का जो ग्राफिकल फॉर्म है, या इसी का आप अगर प्रेशर का ये देखोगे, इट इज शोन इन दिस ग्राफ. कंप्रेशन वाले, कैन यू सी, इट इज एक्टिंग लाइक अ बार कोड. आप सब लोगों ने बार कोड तो देखा है ना, बार कोड जैसे लग रहा है. यहाँ पे पूरे सब एक जगह पे एकदम कंप्रेस हो गए, एकदम गैदर हो गए हैं, यहाँ पे थोड़ा फैल गए हैं. तो कंप्रेशन वाले जो बैंड्स रहेंगे वो आपको प्रेशर में ऐसे नजर आएंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, क्योंकि ऑफ हायर डेंसिटी. बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी इस पे प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कंप्रेस होते हैं. इसमें लोअर डेंसिटी होती है रेयर फ्रैक्शन में, तो कम प्रेशर क्रिएट होता है. ओके, सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कंप्रेशन का ऊपर जाएगा ग्राफ, रेयर फ्रैक्शन का नीचे आएगा, वापस आपका कंप्रेशन का ऊपर जाएगा रेयर फ्रैक्शन का नीचे आएगा. लाइकवाइज इस तरह से ग्राफ बनता है. ओके, इज दिस क्लियर विद एवरीबडी चिल्ड्रन? ये डायग्राम आप सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है. सो हियर वी हैव अ ग्राफ इन दिस वे. यहाँ पे डेंसिटी बता रहा है, यहाँ पे प्रेशर बता रहा है, यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों को मिला के कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो बता रहा है. ठीक है, अभी यहाँ पे इफ यू कैन सी दिस लैम्बडा का साइन, इन बिटवीन दिस यू कैन सी वन लैम्बडा का साइन. करेक्ट. एंड कैन यू सी वन मोर ए वाला एरो?
ये जो रे है, रे ए है, कैन यू सी दिस हियर? So we will understand what exactly both of them are representing. और ये एवरेज डेंसिटी और प्रेशर क्या होता है, ठीक है? एवरेज तो सभी को पता है, एनीथिंग यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सेट्स वी विल गेट एवरेज, करेक्ट? 10 रीडिंग रहेंगे, 10 रीडिंग को ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय 10, यू विल गेट एवरेज, राइट? यस, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय दैट सेट ऑफ नंबर वी कॉल इट एज अ एवरेज. That is easy to understand. बट ये लैम्बडा क्या है और ये ए क्या है, इसके बारे में हम भी जानते हैं. कैन वी गो अहेड चिल्ड्रन? ओके, नाउ इफ यू हैव सीन इन द फिगर नंबर सी, इसमें हमने कुछ नए नए और 2 टर्म सीखने हैं. द फर्स्ट थिंग इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड. व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ साउंड? द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक वर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज लैम्बडा. ओके, आई विल रिपीट फिगर नंबर सी. In figure number C, it is the addition. It is the addition of your density and it is the addition of your pressure. Density और pressure को मिला के हम graphical representation कैसे कर सकते हैं, ये figure number C में बताया है, ठीक है? अगर आप लाउड स्पीकर से आवाज सुनते हो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई विल इरेज एवरीथिंग हियर. हाँ, अगर आप लाउड स्पीकर से या कोई भी हैवी वॉइस सुनते हो या कोई भी आवाज सुनते हो, अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, ठीक है, तो बीच में मैं जोर से बोल रही हूँ, बीच में मैं स्लो हो रही हूँ, तो ये बस यही वो है. जो स्लो बोला जाता है या कम सॉफ्ट वॉइस में बोला जाता है, वो रेयर फ्रैक्शन क्रिएट करता है, और जो हैवी पिच में बोला जाता है वो कंप्रेशंस क्रिएट करता है, ठीक है? अब कंप्रेशन में बहुत सारा प्रेशर होता है वेव्स के ऊपर, क्योंकि वो हाई पिच होती है, सारे वेव्स एक साथ आ जाते हैं हाई इसमें फ्रीक्वेंसी में, तो यहाँ पे ये कंप्रेशन जो है वो पूरा कंप्रेस्ड बैंड क्रिएट करता है. ओके, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो यहाँ पे आपको सब गिचमेंट नजर आएगा. रेयर फ्रैक्शन पे कम प्रेशर होता है, ओके, इसीलिए आपको ये फैले हुए नजर आएंगे एंड यू विल लव द सॉफ्ट वॉइस. आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल. अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड म्यूजिक सुनते हैं, ओके, ओल्ड गाने किसी के पेरेंट्स सुनते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी, यस, ओके, एंड अगर आप ये जनरेशन के गाने सुनते हो, लाइक कादम्बरी मेंशन डीजेस, कोई हिप हॉप पॉप म्यूजिक आप सुनते हो, क्या फर्क नजर आता है? यू कैन फील योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को एकदम काम फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, म्यूजिक भी काफी सॉफ्ट होती है, ओके. और जो आप गाने सुनते हो उससे तो कभी कभी वो बोलते हैं, अरे काय हे लावले, यस, एवढा आवाज, राइट? बिकॉज ऑफ दिस, गॉट इट? ये कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस. अब हमने क्या किया है, डेंसिटी, ओके, और हमने प्रेशर को मिला के ग्राफ बनाया है. अब हमको पता है कंप्रेशन का ग्राफ ऊपर जाएगा और रेयर फ्रैक्शन का ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ये दोनों को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. ये हमारा कंप्रेशन है, ओके, इसके बाद ये नीचे जाता है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये वापस कंप्रेस होता है, ये वापस रेयर फ्रैक्ट होता है. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है साउंड वेव का. एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर नाउ? कादम्बरी, अंडरस्टूड ये क्या है? फिगर नंबर सी इज रिप्रेजेंटिंग योर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ठीक है? अब इसमें कुछ हमने टर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि लैम्बडा वाला टर्म और ये रे ए वाला टर्म. ये क्या होता है? तो अभी ये हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ऑल राइट, सो यहाँ पे जैसे हमने देखा है, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड विच इज कॉल्ड एज लैम्बडा. ओके, इसे हम लैम्बडा कहते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव. while its frequency is indicated by nu. nu मतलब न्यू, वो कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, ओके. लैम्बडा कैसे लिखा जाता है? ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, उल्टा y, ओके, और न्यू ऐसे लिखा जाता है. सो लैम्बडा इज नथिंग बट वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव एंड न्यू इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. आर दिस टू टर्म्स क्लियर विथ एवरीबडी? न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा का मतलब साउंड वेव्स है, ओके. अच्छा, ठीक है. नाउ द एम्पलीट्यूड विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर और डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय ए. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे,
दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये आपके मीन पोजिशन से, ये ओरिजिनल पोजिशन से अराइज होती है। ये लाइन क्या है? दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनल साउंड का सोर्स है। साउंड का सोर्स कैसे जा रहा है? लॉन्जिट्यूडनल वे में जा रहा है, तो ये ओरिजिनल साउंड का सोर्स है। इसके लिए बीच में एक लाइन है, ये ओरिजिनल पोजीशन है साउंड की। इस साउंड में ऊपर नीचे वेव्स ट्रैवल हो रहे हैं, तो ये ग्राफ है। आर यू गेटिंग व्हाट इज दिस लाइन? जैसे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कैसे थी लेंस में, बस ये साउंड की प्रिंसिपल एक्सिस है। गॉट इट? कैन यू रिलेट बोथ द टर्म्स? तो ये साउंड की जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें सर जब साउंड ऊपर जाएगा तो कंप्रेस होगा, नीचे जाएगा तो रेट्रैक्ट होगा, ठीक है। और ये जो है ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? इट इज विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ प्रेशर और डेंसिटी इज इंडिकेटेड बाय ए। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, कितना मैक्सिमम साउंड वो डेंसिटी बना सकता है या प्रेशर क्रिएट कर सकता है, इसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। The time taken for one oscillation of pressure or density at point in the medium is called as time period and it is indicated by t. और हमारा जो टाइम एक ऑसिलेशन को ट्रैवल करने के लिए होता है, दैट इज यहाँ से आके यहाँ पे आके यहाँ तक, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टाइम टी। इट टेक्स वन, और एक ऑसिलेशन को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच। पिच आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ये फ्रीक्वेंसी जो बेस्ड होती है वो पिच के ऊपर बेस्ड होती है ऑफ द साउंड, while the value of amplitude determines its strength और loudness. ओके, साउंड किस पे डिपेंड करता है? कितनी स्ट्रॉन्ग वॉइस है और कितना लाउड है, ठीक है। इसके बारे में हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है चिल्ड्रन? Everybody clear with two introduction of Greek words, nu and lambda? Okay. Baki amplitude, we will come to that part. The highest, yes, very good. Okay. Amplitude is a maximum value of pressure. कितना maximum pressure बनता है वो amplitude बताएगा. Okay. उसके बाद it is indicated by A. ये जो रे A की बात कर रहे थे हम. Time taken to complete one oscillation T. Okay. और वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस कितना पिच हाई है या लो है, ठीक है। ऑलराइट, कैन आई गो अहेड? सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने स्कूल में काफी बार सुना होगा, म्यूजिक में सबसे बेसिक नोटेशंस जो होते हैं वो साउंड नोटेशंस होते हैं। अगर आपने म्यूजिक की क्लास ली है तो आपको स्टार्ट कहाँ से होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? यस। उसको अलग अलग आपको फ्लो में या अलग अलग आपको फ्रीक्वेंसी में बोलने को बोलते हैं। अगर आपने म्यूजिक की क्लास ली है या आपने अपने फ्रेंड से सुना है या पेरेंट्स से सुना है, कोई भी आपकी फैमिली में म्यूजिक फील्ड से रिलेटेड है, तो वो स्टार्ट कहाँ से करता है? सा रे ग म प ध नी सा। मैं जो बोल रही हूँ, इवन दैट इज हैविंग फ्रीक्वेंसी। एवरी नोट ऑफ दिस सा रे ग म प ध नी और वापस सा, दिस इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी। इसीलिए आपका जो बेसिक जो है आपको ये सिखाते हैं, हाउ योर फ्रीक्वेंसी, हाउ योर नोटेशंस आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। आप कौन से टाइम पे पिच हाई करोगे, कौन से टाइम पे लो करोगे। आई गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल। सबके फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग है? आप सभी के फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग है? वॉइस रिकॉर्डर? ओके। आज आपका होमवर्क ये रहेगा, आफ्टर दिस क्लास टेक आउट 5 मिनट्स। ओके, खाना वाना खा के मस्त से सोने के पहले 5 मिनट आप निकालो। आपको जो गाना पसंद है, जो भी गाना पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और एनी ऑफ योर रीजनल लैंग्वेज, वो आप गाना गाओगे, ओके, और आप रिकॉर्ड करोगे। ऑलराइट, जब भी आप अपना गाना रिकॉर्ड करोगे, यू विल नोटिस वहाँ पे भी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। अगर आपका फोन में वॉइस रिकॉर्डर आपने डाउनलोड किया है तो उसमें आपके पता है फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे बताती है जब आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हो, दैट यू विल नोटिस। ओके, वो ऑब्जर्व करके आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे व्हाट डिड यू फील, कौन से लेवल पे फ्रीक्वेंसी ऊपर गई थी, कौन से लेवल पे फ्रीक्वेंसी नीचे आई।
अब 2 तरह के गाने रिकॉर्ड करोगे, ओनली 5-5 सेकेंड्स के या 10 सेकेंड्स के। एक आप नॉर्मल सिंपल वाला सॉन्ग ले लो, सादा वाला, कोई ओल्ड सॉन्ग या कोई भी लो फ्रीक्वेंसी वाला। दूसरा आप हाई फ्रीक्वेंसी वाला कोई डीजे वाला गाना ले लो। दोनों में आपको क्या फील हुआ, ये मुझे आप एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम बताओगे। इज दैट क्लियर? ओके ओके। नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस मैन एंड दैट ऑफ वुमेन? हमारे वॉइस ऑफ मैन एंड वुमेन बोथ आर डिफरेंट, ओके, डिपेंडिंग ऑन द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स। हमारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, बट देन देर इज अ फंक्शनिंग, इसका एक कंस्ट्रक्शन भी है थ्रोट का। तो ये क्या डिफरेंस है, वी विल स्टडी दैट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, ये कुछ एक्टिविटीज है जो आप ट्राई कर सकते हैं। टेक योर फ्रेंड टू अ प्लेस वेयर देयर आर आयरन पाइप्स। ओके, आयरन पाइप्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक सरफेस ले लो, सॉलिड सरफेस ले लो। सॉलिड सरफेस के 20 सेंटीमीटर पे आप अपना कान रख दो और आपके फ्रेंड या आपके सिबलिंग को या आपके फैमिली मेंबर में मम्मी पापा को किसी को भी बोल दो, दूसरे 25 सेंटीमीटर से आपसे 25 सेंटीमीटर दूर, 1 फुट दूर, 1 फीट दूर से वहां से टैप करे, आपको आवाज यहाँ पे कान पे सुनाई देगा। इंस्टेड ऑफ आयरन पाइप्स you can take any solid surface. Let's take wooden surface. Okay, हर solid का frequency अलग होगा, तो आप उसको wooden surface देख लो। You can hear on this end जो वहाँ पे टैप हुआ है। उसके बाद you can do this activity as well। एक बड़ा सा पाइप ले लो आप और आपके फ्रेंड को, उस पाइप में भी अगर आपके पास आयरन पाइप है तो ठीक है, वरना पेपर का पाइप भी बना सकते हैं। आपके फ्रेंड को वहाँ पे बोलो कि आप वहाँ से बात करें और एक तरफ आप अपना कान लगा दो। Minimum distance has to be 20 to 25 feet away. Okay? तो ये आप ट्राई कर सकते हो, आपको वहां से वो आवाज ट्रैवल होते हुए सुनाई देगी और थोड़ा फ्रीक्वेंसी उसका हाई लो कैसा होगा वो मुझे ऑब्जर्व करके आप बताओगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद ये तो आप कर सकते हो ऑन योर एंड, ठीक है। कोई भी एक एक्टिविटी आप करोगे और आप मुझे बताओगे इन चारों में से। फोर्थ वाला क्या है, द सेम साउंड कमिंग थ्रू द एयर कैन ऑल्सो बी हर्ड, बट विच साउंड रीचेस यू द फर्स्ट? एयर वाला पहले आता है, सॉलिड वाला पहले आता है, लिक्विड वाला पहले आता है, वो आप ऑब्जर्व करोगे। ओके, पर इन चारों एक्टिविटी से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, यू कैन सी दैट यू हियर द साउंड थ्रू आयरन पाइप मच बिफोर यू हियर इट कमिंग फ्रॉम एयर। ओके, सॉलिड से जो साउंड है वो फास्टर ट्रैवल होगा, उसके बाद लिक्विड में ट्रैवल होगा, उसके बाद गैस में। ओके, यहाँ पे फास्टेस्ट होगा, यहाँ पे फास्टर होगा और यहाँ पे फास्ट होगा। ओके, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम यहाँ पे साउंड ज्यादा ट्रैवल करेगा। ऑलराइट, नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन बिफोर गोइंग अहेड। स्पेस में क्या आपको साउंड सुनाई देती है? स्पेस में सुनाई देती है साउंड? कभी सुना है स्पेस में साउंड वेव्स होते हैं या साउंड होती है? नो, व्हाई इज इट सो? रीजन क्या है? वहां पे तो इतने सारे गैस वाले अलग अलग स्टार्स होते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, इतने सारे एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स इतने क्रैश होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है एक्टिविटी। वेरी गुड वेदांत, बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर। एनी अदर रीजन? Only atmosphere is a reason? Only atmosphere is a reason? Very good. The appropriate word इसके लिए क्या है? There is no medium. Atmosphere is related to a certain part of environment. मीडियम का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ नहीं होता है स्पेस में। इट इज वैक्यूम। स्पेस इज मेड अप ऑफ वैक्यूम, इसलिए वहां पे लाइट ट्रैवल होती है लेकिन साउंड ट्रैवल नहीं होता है। ओके, व्हेन यू एंटर एन एटमॉस्फेयर ऑफ सर्टेन प्लैनेट, फॉर एग्जांपल हमारा जो अभी अभी मिशन हुआ है इसरो का, जो मार्स रोवर लैंड हुआ है, तो मार्स पे कुछ साउंड वेव्स उनको फील हुए, वाइब्रेशंस कैच किए उन्होंने, right? So that is different because of vibration, we could see that.
ओके, और वो मार्स के एटमॉस्फेयर में गया, बट इन ओवरऑल स्पेस, पूरी स्पेस में ओवरऑल आपकी पूरे स्पेस में वैक्यूम है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। ओके, सो हेंस वहां पे आपको साउंड सुनाई नहीं देती है। कमिंग बैक हियर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव, फॉर एग्जांपल द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी एंड लोएस्ट डेंसिटी इन यूनिट टाइम टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, वेलोसिटी का क्या मतलब है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव। ओके, ये हाई वेव और उसके बाद ये लो वेव। ओके, ये पूरा का पूरा ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम लगा इसको कन्वर्ट होने में, ये फॉर्मूला है। एवरीबडी विल रिमेंबर दिस, एवरीबडी विल रिमेंबर दिस। यस, वेलोसिटी का मतलब है ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम is called as velocity. Okay, at any point of the sound, at any point on the sound wave covers a distance equal to lambda, which is wavelength in the time t period. Thus the velocity of sound is given by, अभी यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? अगर आपने ऊपर ग्राफ में देखा होगा, इट इज लैम्बडा। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, एक साउंड वेव का, और ये टी पीरियड, तो इसलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ओके, विच इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी। ओके, बट अब यहाँ पे रीजन क्या है? वेवलेंथ और टाइम पीरियड, ओके, इज नथिंग बट योर न्यू। ओके, न्यू क्यों? क्योंकि अगर आपकी वेवलेंथ, अगर ये डिस्टेंस इतना कवर करती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके, अगर टाइम कम में डिस्टेंस इतना कवर करती है, टाइम ज्यादा में कम डिस्टेंस कवर करेगी, तो दिस इज इनवर्स 1/t है ये। ओके, if you have not understood, I'll just clear everything, I'll repeat again ये वाला part. 1 minute, just give me a moment please. ठीक है, 1 minute. हाँ, the distance covered by a point on the wave, for example the point of highest density or the point of lowest density in unit time is the velocity of sound wave. ये part clear है सभी को? Okay, at any point on the sound wave covers a distance equal to lambda, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हायर पॉइंट से लेके लोअर पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट योर लैम्बडा, ये वेवलेंथ है आपका। ओके, इन गिवन टाइम पीरियड टी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसको कितना टाइम लगा है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ साउंड। v is equals to nu into lambda. What is nu? न्यू का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, व्हाट इज न्यू ऊपर, दिस इज न्यू, फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंट साउंड है, कितना फटाफट आता है, कितना स्लो हाई लो है या हाई है, वो फ्रीक्वेंसी में आता है। दिस इज न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। एक्सेलेंट। ओके, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कैसे रिप्रेजेंट होगी? 1/t। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ओके, हायर द फ्रीक्वेंसी लेस इज द अमाउंट ऑफ टाइम, lower the frequency more is the amount of time. Now you followed? Okay, and hence it is multiplied by wavelength. आपकी frequency और wavelength को multiply करके you will get this formula. Got it everybody? So frequency into wavelength is equal to velocity. ये पहला formula है। अगर आप इसको convert करोगे, ठीक है, अगर आप इसको convert करोगे t में, okay, yes, that is why बिकॉज आपका फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है 1/t। ओके, तो हमने क्या किया, 1/t और ये लैम्बडा को इसके साथ लाके मल्टीप्लाई किया। इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट लैम्बडा अपॉन टी। गॉट इट? ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 1/t इसके लिए, क्योंकि अगर आपका टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम बढ़ेगी। इनवर्स है ये। इनवर्स में हम लोगों ने पढ़ा था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, when something is lesser other one is greater, when something is greater other one is lesser. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, hence the velocity of sound wave is equals to velocity, 1 minute children. हाँ, coming back here, hence
The velocity of sound is equal to wavelength into frequency. Okay, velocity of sound wave क्या बताता है? Wavelength into frequency. I think we shall stop here for today. Next time we'll continue with this. कादम्बरी, just remind me next time. Okay, हम यहाँ से continue करेंगे. We can stop here for now, right? All right, children. चलो. Take care. We'll see you in next session. Bye bye. Thank you, Kadambari.